Today we'll start with sequences and series. इसके बाद फिर हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा सीक्वेंसेस सीरीज के बाद. सीक्वेंसेस सीरीज में एपी तुम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो और सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये तुम लोग जानते ही हो. इनफैक्ट जो आईसीएससी वाले हैं वो उन्होंने जीपी भी पढ़ा है, बट थोड़े क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बेटर होती है इसमें. तो 11th क्लास में तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग छोड़ देते थे 10th क्लास में, वो सब अब वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम लोगों को पता है सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंसेस फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न्स. सो सीक्वेंसेस आर बेसिकली लेट्स से एक नंबर का जो है नंबर कॉमास से सेपरेटेड है. लेट्स से हम 2, 4, 6, 8 इस तरह से लिखते हैं, तो ये एक सीक्वेंस है. सीक्वेंस मतलब जो दूसरा नंबर है उसको हम पहले नंबर से ऑब्टेन कर सकते हैं और तीसरे को दूसरे से सेम फॉर्मूला से ऑब्टेन करेंगे और सेम फॉर्मूला से थर्ड से फोर्थ को ऑब्टेन करेंगे. सो एवरी नेक्स्ट वन is being obtained by the previous one using the same formula. So such set of numbers, yeah, such combination of numbers together are called sequence of numbers. So sequences usko kehte hain. So sequences following specific patterns are called progression. So एक जो specific pattern sequence follow करता है उसको progression कहते हैं. In previous class we have studied about arithmetic progression, right? Or in this chapter, besides discussing AP, we'll discuss arithmetic mean, geometric mean, a relationship between arithmetic mean and geometric mean. We'll also discuss geometric progression. So special series in the form of sum of n terms of consecutive natural numbers, sum to n terms of square of natural numbers, and sum to n terms of cubes of natural numbers will be studied. So summation of n square and summation of n cube, ये सारी चीजें. So a sequence containing a finite number of terms is called finite sequence. For example, sequence of ancestors is a finite sequence since it contains 10 terms, right? So ये कुछ एक example ऊपर discuss किया गया. But a sequence is called infinite if it is not a finite sequence. For example, the sequence of successive quotient mentioned above in infinite sequence. तो basically जिसमें number of terms को आप add मतलब count कर सको वो finite sequence है, और जहाँ number of terms को आप count नहीं कर सकते हैं उसको हम infinite sequence बोलते हैं. ठीक है, तो दो तरीके का sequence हो गया, एक finite sequence है और एक infinite sequence. Now, in some cases, an arrangement of numbers such as 1, 1, 2, 3, 5, 8 has no visible pattern. हम लोग को pattern नहीं दिख रहा है यहाँ पे. But अगर आप देखो कि अगर आप A1 और A2 को 1, 1 ले रहे हैं, right? A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 मतलब previous 2 terms के addition को 1 plus 1 2 दे देगा, 2 plus 1 3 मिल जाएगा, 3 plus 2 5 मिल जाएगा, 5 plus 3 8 मिल जाएगा, इस तरह से. So an minus 2 plus an minus 1 is equal to an. तो इस सीरीज का नाम फिबोनाची सीरीज है ना. सो फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस कहते हैं इसको. जो लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं उन लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रोग्राम है जो बच्चे लिखते हैं. तो प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके हम लोगों को करंट टर्म मिलता है जो an मिलता है. तो an is equal to an minus 1 plus of an minus 2. तो इस सीरीज को हम लोग फिबोनाची सीरीज कहते हैं. Now, in every sequence, we should not expect that its term will be necessarily be given by a specific formula. However, we expect a theoretical scheme or a rule for generating the terms a1, a2, an in succession. तो जो टर्म्स को जनरेट करने के लिए हम लोग के पास एक रूल होना चाहिए किसी भी सीक्वेंस में. अगर रूल नहीं है तब उसको हम लोग अगर हमारे पास रूल नहीं है तो हम लोग उसको सीक्वेंस नहीं बोलेंगे. सो in view of the above, a sequence can be regarded as a function
whose domain is the set of natural numbers, or some subset of it of the type 1, 2, 3 up to k. Sometimes we use the functional notation an for nth term. So basically क्या है, ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब जो n है वो नेचुरल नंबर ही होगा. हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म करते हैं, हम 1.5 टर्म तो बोलते नहीं है. फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स हो नहीं सकता है, और नंबर ऑफ टर्म 1 से ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट टर्म से, राइट. तो इसको हम लोग बेसिकली अ फंक्शन इन n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा बोल सकते हैं किसी भी सीक्वेंस को. क्लियर है बच्चों? यस सर. अब सीरीज क्या हो गया, जो सीक्वेंसेस है, जो सीक्वेंस हमारे पास a1 a2 a3 an, हमारे पास n नंबर का सीक्वेंस है, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं समेशन साइंस के साथ, मतलब एडिशन के फॉर्म में हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम लोग सीरीज कहते हैं. तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया, और उसको अगर प्लस साइन के साथ हम लोग अरेंज करते हैं तो इसको हम लोग सीरीज कहते हैं. ठीक है, तो सीक्वेंस और सीरीज में यही डिफरेंस है कि सीक्वेंस में नंबर्स जो है, जो टर्म्स हैं, वो कॉमा से सेपरेटेड है, और यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो एडिशन साइन से सेपरेटेड है. सो सीरीज इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द गिवन सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. तो सीरीज भी फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पास जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट. Series are often represented in contact form called sigma notation. तो इसको हम लोग sigma से represent कर सकते हैं, मतलब summation of ai where I is equal to 1 to n. तो ये basically sigma notation हो गया. So using the Greek letter sigma as means of indicating the summative involved, summation involved. So thus the series a1 plus a2 plus a3 up to an. So this is what summation of n number of terms is abbreviated as summation of ak, where k varies from 1 to n. तो k का वैल्यू 1 से n तक वेरी करो, k का वैल्यू 1 डालोगे तो a1 हो गया. अब समेशन साइन का मतलब प्लस होता है. उसके बाद नेक्स्ट k का वैल्यू 2 है तो a2 लिख लेंगे, और बीच में फिर से प्लस साइन आ जाएगा. k का नेक्स्ट वैल्यू 3 है तो a3 हो गया. इस तरह से चलते रहेंगे और हम an तक पहुंच जाएंगे. So A1 से AN तक का जो ये सीरीज है, इसको हम लोग समेशन साइन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सीरीज के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. आ रहा समझ में बच्चों? यस सर. हाँ सर. ये पहला एग्जाम्पल देखते हैं. तो ये बहुत सिंपल है. राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग. तो पहला 3 टर्म निकालना है. a1 करेंगे तो n का वैल्यू 1 कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 5 7 हो जाएगा. सेकेंड टर्म निकालना है तो 2 इंटू 2 प्लस 5 4 प्लस 5 9 हो गया. थर्ड टर्म इज 2 इंटू 3 प्लस ऑफ 5 6 प्लस 5 11 हो गया. तो हमारे जो सीक्वेंसेस फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे, दिस इज 7 9 एंड 11. उसी तरह यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बाय 4 विच इज माइनस 2 बाय 4 और माइनस 1 बाय 2 लिख सकते हैं. a2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 बाय 4, सो दिस इज माइनस 1 बाय 4. a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 बाय 4 विच इज इक्वल टू 0. सो जो हमारे सीक्वेंसेस के टर्म्स हो गए, पहला टर्म माइनस 1 बाय 2 या माइनस 2 बाय 4 जो भी कर लो, माइनस 1 बाय 4 दूसरा टर्म, तीसरा टर्म 0. तो ये हमारा उस सीक्वेंस के फर्स्ट 3 टर्म्स हो गए जिसका nth टर्म हम लोगों को दे रखा था. क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख भी लिया सभी ने? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय. तो हम लोग को 20th टर्म चाहिए, a20, राइट. सो
what is the 20th term of the sequence defined by an is equal to n minus 1, 2 minus n, 3 plus n. So A20 is equal to 20 minus 1, 2 minus 20, 3 plus 20. So this is 19 minus 18 into 23. So if you put the values, 19 into 18 into 23, 7866. So value will be minus 7866. Clear है बच्चों? हाँ सर। Let the sequence an be defined as, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है और an is equal to an minus 1 plus of 2, राइट? तो पिछले टर्म में 2 ऐड कर देंगे तो an मिल जाएगा, मतलब a2 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, a1 plus 2 मतलब 3 हो गया। a3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a2 plus 2 मतलब 5 हो गया, ठीक है? और n ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 के लिए लिखना है, राइट? तो हम लोगों को फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट करस्पॉन्डिंग सीरीज। पहला 5 टर्म निकालना है हमें। a4 इज इक्वल टू a3 प्लस 2 7, a5 इज इक्वल टू a4 प्लस 2 9। सो जो हमारे पास सीक्वेंस आया 1 3 5 7 और 9। सो दिस इज द सीक्वेंस। नाउ we write it in, they are saying to write the corresponding series also, series। so ऊपर वाला sequence और series को लिखेंगे तो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, ये हमारा series हो। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Exercise 9.1. Write the first 5 terms of each of the sequence in exercise 1 to 6 whose nth terms are given। तो पहले वाले का अगर हम देखें, an दे रखा है n into n plus 2, a1 करेंगे तो 1 into 1 plus 2, 3 into 1 3 हो जाएगा। सेकेंड टर्म इज 2 into 2 plus 2, 8 हो गया। थर्ड टर्म इज 3 into 3 plus 2, 3 plus 2, so 5 3s are 15 हो गया। a4 is equal to 4 into 4 plus 2, so 4 into 6 24 हो गया, right? And a5 is equal to 5 into 5 plus 2, 55 हो गया, ठीक है? सेकेंड देखिए, an is equal to n by n plus 1, तो a1 निकालेंगे 1 by 1 plus 1, 1 by 2 हो गया। a2 is equal to 1 2 by 2 plus 1, so this is 2 upon 3, right? a3 is equal to 3 upon 3 plus 1, so this is equal to 3 by 4. a4 is equal to 4 by 4 plus 1, so this is 4 by 5. a5 is 5 by 5 plus 1, that is 5 by 6, right? यहाँ पे a1 is equal to 2 raised to the power 1 2 हो गया, a2 is equal to 2 square which is equal to 4 हो गया, a3 is equal to 3 square which is equal to 9 हो गया, a4 is equal to 4 square which is equal to 16 हो गया, a5 is equal to 5 square which is equal to 25 हो गया।
क्लियर है बच्चों? So इसमें 2 to the power 3 होना चाहिए ना शायद. हाँ सॉरी 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 हो गया और सब उल्टा लिख लेना. 2 4 इज इक्वल टू 16 हो गया. 2 5 इज इक्वल टू 32 हो गया. लिख लिया? Yes, sir. हाँ सर. फोर्थ है यहाँ पे an इज इक्वल टू 2n माइनस 3/6 है. तो अगर a1 निकालना होगा तो 2 इंटू 1 माइनस 3/6. सो 2 माइनस 3 इज माइनस 1/6. राइट. नाउ a2 is equal to 2 into 2 minus 3/6. 4 minus 3 is 1/6. a3 is equal to 2 into 3 minus 3/6. So 6 minus 3 is 3/6. That is 1/2 लिख सकते हैं. a4 is equal to 2 into 4 minus 3/6. So 8 minus 3, 5/6 हो जाएगा. a5 is equal to 2 into 5 minus 3/6. 10 minus 3 is 7/6. Now, यहाँ पे a1 is equal to minus 1 raised to the power 1 minus 1 into 5 raised to the power 1 plus 1. So this is minus 1 raised to the power 0, 1 हो गया. 5 square 25 हो गया. a2 is equal to minus 1 raised to the power 2 minus 1. 5 raised to the power 2 plus 1. Minus 1 raised to the power 1 minus of 5 cube minus 125 हो जाएगा. a3 is minus 1 raised to the power 3 minus 1. 5 raised to the power 3 plus 1, 4 हो गया. So this is 625. a4 is minus 1, 4 minus 1, 5 to the power 5. So this is 3125 होता है ना, minus of 3125. a5 is minus 1, 5 minus 1, 5 to the power 6. So this is 15625. सिक्स वाले यहाँ फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5/4. So this is 5 plus 1, 6/4 is equal to 3/2. a2 is equal to 2 into 2 square plus 5/4. So this is 4 plus 5, 9. 2 is 18/4. So this is 9/2. a3 is 3 into 3 square plus 5/4. 14/4. 7/2, 21. a4 is 4 into 4 square plus 5/4. 21. a5 is equal to 5 into 5 square plus 5/4. 75/2. Clear है? Yes, sir.
Now find the indicated term in each of the sequence in exercise 7 to 10 where nth term is given. तो यहाँ nth term दिया हुआ है और हमें 17th और 24th term निकालना है. A17 करेंगे 4 into 17 minus 3. So 4 into 17 is 68 minus 3 which is equal to 65. उसी तरह 24th term निकालना है 4 into 24 minus 3. So this is 96 minus 3. So this is 93. एट्थ वाले में an दे रखा है तो a7 निकालना है. This is 7 square by 2 to the power 7. 49 upon 128. Clear? Yes, sir. नाइन्थ क्वेश्चन दे रखा है an is equal to this तो a9 निकालने बोल रहा है. a9 हो जाएगा हमारा -1 raised to the power 9 minus 1 into 9 cube. So this is -1 raised to the power 8, 729. So this is plus of 729. 10th वाला a20 निकालना है तो a20 is equal to 20 into 20 minus 2 by 20 plus 3. So this is 20 into 18 divided by 23. So this is 360 by 23. Clear है? Yes, sir. 11th क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 terms in each of the sequence in exercise 11 to 13 and obtain the corresponding series. तो पहले तो फर्स्ट 5 terms लिखना है, उसके सीरीज निकालना है. a1 का वैल्यू दे रखा है 3. a2 is equal to 3 times a1 plus of 2. 3 into 3 plus of 2, 9 plus 2, 11 हो गया. a3 is equal to 3 into a2 plus 2. So this is 3 into 11 plus of 2. 33 plus 2 is 35. A4 is 3 into a3 plus of 2. 3 into 35 plus of 2. 105 plus 2 is 107. A5 is equal to 3 into A4 plus of 2. 3 into 107 plus of 2. 321 plus 2 is 323. So जो सीक्वेंस होगा वो होगा 3, 11, 35, 107, 323 और सीरीज के फॉर्म में लिखना होगा 3 plus 11 plus of 35 plus 107 plus 323. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 12th वाला देखिए, क्वेश्चन में a1 का वैल्यू दे रखा है a1 is equal to -1. a2 निकालना है, so this is a1 by 2 -1 by 2 हो गया. a3 निकालना है a2 by 2, sorry a2 by 3, so this is -1 by 6. a3 is equal to
A3 is equal to A2, yeah, sorry, A4 is equal to A3 upon 4. So minus 1 by 24. A5 is equal to A4 upon 5 minus 1 by 120. हमारा जो सीक्वेंस होगा -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/120. सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 -1/24 -1/120. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिख भी लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब A1 A2 का वैल्यू 2 दे रखा है, AN का वैल्यू AN -1 फॉर n ग्रेटर देन 2 दे रखा है. n ग्रेटर देन 2 का मतलब देखो A1 इज इक्वल टू 2 है, A2 भी 2 है, राइट. अब यहाँ पे AN का वैल्यू मतलब A3 इज इक्वल टू A2 -1, 2 -1 1 हो गया. A4 इज इक्वल टू A3 -1, तो 1 -1 0 हो गया. A5 इज इक्वल टू A4 -1, तो 0 -1 -1 हो गया. तो टर्म हो गया, सीक्वेंस हो गया 2 2 1 0 -1. सीरीज हो गया 2 + 2 + 1 + 0 + -1. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. हाँ sir. 14th है, the Fibonacci series is defined by फर्स्ट और सेकंड दोनों 1 के बराबर है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. nth टर्म जो है an -1 प्लस an -2 है, राइट. सो अब देखो फाइंड an + 1 by an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. तो अब देखो पहले तो हम a3 निकालेंगे. a3 इज इक्वल टू a1 + a2 विच इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो गया. A4 is equal to A3 plus A2 which is equal to 2 + 1 3 हो गया. और A5 is equal to A4 plus A3 3 + 2 5 हो गया. अब हमें A6 भी चाहिए. A6 is equal to A5 plus A4 5 + 3 8 हो गया. तो जो हमारा सीक्वेंस है वो है 1 1 2 3 5 8 and so on. So find an plus 1 upon an for n is equal to 1 करोगे. n is equal to 1 में ये क्या हो गया, a2 by a1 निकालना है, 1 by 1 1 हो जाएगा. a3 by a2 करोगे, so this is equal to 2 upon 1 2 हो जाएगा, राइट. उसके अलावा a4 by a3 करेंगे, so this is 3 upon 2 यही रह जाएगा. a5 upon a4 निकालेंगे, 5 upon 3 हो जाएगा. और a6 upon a5 निकालेंगे, 8 upon 5 हो जाएगा. यही निकालना है.
क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे. ठीक है, इसको हम लोग एपी भी बोलते हैं, राइट? सो यहाँ पे a sequence so a sequence a1 a2 a3 up to an is called an arithmetic progression if an plus 1 is equal to an plus d. ठीक है, सो यहाँ पे या फिर an minus an minus 1 this is equal to d, कोई सा भी यूज कर सकते हो. ठीक है ना, दोनों केस में it will be known as an arithmetic progression only. Now जो a1 है, it is called the first term. d हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया. So a1 is the first term, d is the common difference, and n is the number of terms. So nth term of an AP is represented as an. This is a plus n minus 1 into d. So this is the nth term of an AP. Clear है? Yes, sir. हाँ सर. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Properties of an AP. पहला property, if a constant is added to each term of an AP, the resultant sequence is also an AP. So if a constant is added to each term of an AP, the resulting sequence
is also an AP. Second है, if a constant is subtracted, same, if a constant is subtracted to each term of an AP, the resulting sequence is also an AP. Teesra, if each term of an AP is multiplied by a constant, if each term of an AP is multiplied by a constant term. So if each term of an AP is multiplied by a constant, then resulting sequence is also an AP. Fourth है, if each term of an AP is divided by a non-zero constant, then if each term of an AP is divided by non-zero constant, then resulting sequence is also an AP. कभी कभी nth टर्म को लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं. L is equal to an is equal to a plus n minus 1d. So this is the formula to find the last term of an AP, which is same as nth term of an AP. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now sum of n terms of an AP इसको हम लोग Sn से रिप्रेजेंट करते हैं. n by 2 2a plus n minus 1 into d, जिसको हम लोग दूसरा एक और फॉर्मूला होता है n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो. क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब एग्जाम्पल्स करेंगे. फोर्थ एग्जाम्पल कह रहा है इन एन एपी इफ mth टर्म इज n, मतलब mth टर्म दे रखा है n एंड nth टर्म इज m, मतलब an is equal to m, where m is not equal to n, find the pth टर्म. हमें pth टर्म निकालना है तो देखो n और m के टर्म्स में ही निकालना होगा. am is equal to n, हमें पता है am is equal to a plus m minus 1d is equal to n, और an is equal to a plus n minus 1d, this is equal to m. तुम क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट करेंगे ये a माइनस a कैंसिल हो गया, md minus d minus nd plus of d is equal to n minus m, माइनस d प्लस d कैंसिल हो गया, m minus n into d is equal to n minus m, d is equal to n minus m divided by m minus n, which is equal to minus 1.
अब हमें pth टर्म निकालना है. अच्छा, d -1 निकल गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो. तो a प्लस m -1 इंटू -1 इज इक्वल टू n है. a minus m plus of 1 is n, या a is equal to m plus n minus 1. ap है, this is a plus p minus 1 d. a के जगह वैल्यू पुट करो m plus n minus 1, p plus of p minus 1 into d है -1. So this is m plus n minus 1 minus p plus of 1. So this is, ये -1 plus 1 cancel हो गया. So this is m plus n minus p. Clear है? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Fifth example में कह रहा है, if the sum of n terms of an AP is, sum of n terms is equal to n into p plus 1 by 2 n into n minus 1 into q, where p and q are constants. Capital P and Q are constants. ठीक है. So ये हमें Sn दे रखा है, P और Q कांस्टेंट है यहाँ पे. अब फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू निकालना है. Sn इज इक्वल टू n इंटू P दे रखा है प्लस हाफ n इंटू n माइनस 1 Q दे रखा है. ठीक है. अब यहाँ पे S1 क्या हो जाएगा, सम ऑफ वन टर्म्स, ये क्या है फर्स्ट टर्म के बराबर. तो A1 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 1 इंटू पी प्लस ऑफ हाफ इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू. सो दिस इज सिंपली P, क्योंकि ये तो 0 हो गया. सो फर्स्ट टर्म P हो गया. S2 मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स A1 प्लस A2. S2 करेंगे तो 2P प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू Q. A1 प्लस A2 का मतलब P प्लस A2. P A1 का वैल्यू P हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, इज इक्वल टू 2P प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 है, Q है. सो A2 इज इक्वल टू 2P माइनस P, P प्लस Q हो जाएगा, है ना. ये सेकेंड टर्म. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो मतलब P प्लस Q माइनस ऑफ P, ये Q के बराबर हो गया. कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, Q हो गया. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. भाई आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, लिख लेने दो सबको. इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो वी विल कंप्लीट द एग्जांपल्स. अरिथमेटिक मीन भी थोड़ा सा कर लेंगे और 9.2 फिर शुरू करेंगे. ठीक है, तैयारी करो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जम के. ठीक है, पूरे नंबर लाने हैं उसमें. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है। जाना, तुम्हारी वो क्या कहते हैं क्लासेस शुरू होंगी सैटरडे संडे से, वो आईएएस वाली। ओके सर। बन के दिखाना है, ये नहीं कि बस तुम लोग के लिए शुरू किए हैं 2 बच्चों के साथ। थैंक यू सर। चलिए बढ़िया। सर बाइनॉमियल या नहीं यार, थ्योरम का प्लीज फर्स्ट वो लेक्चर भी अपलोड कर दीजिए। हाँ मैं कर दूंगा बेटा। थैंक यू सर। फर्स्ट 2 लेक्चर्स किस में, गूगल क्लासरूम में या यूट्यूब? यूट्यूब में सारे हैं, सर यूट्यूब पे सिर्फ सेकंड और थर्ड है। फर्स्ट नहीं है? नहीं सर। मैं चेक कर लूंगा, मैं कर दूंगा। थैंक यू। ठीक, ओके बेटा।